Yes, student, I am Monica Soral from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the third chapter from a democratic politics, electoral politics. Now let's see what we can read about this chapter. You all know that elections are nearing. So this is about the elections, that why the elections are held in a democratic country and is the election necessary for a democratic country. All these points we will be learning in this chapter. Now overview. In the first chapter we had seen democracy is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy is for the people to govern through their representatives. In this chapter we will look at how these representatives are elected. We begin by understanding why elections are necessary and useful in a democracy. We try to understand how electoral competition among parties serve the people. We then go on ask what makes it election democratic. Now see, all this is an overview that what are the things we are going to learn about in this chapter. Now जब भी इलेक्शंस होते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से अपने दिमाग में आता है कि वाई इलेक्शंस, हमें क्यों इलेक्शंस करने हैं. बट इलेक्शंस, see here they are asking the questions why elections. Now here they have given you one clip of the newspaper. I'll just tell you what it is about. See, the time is after midnight and expectant crowd sitting for the past 5 hours in the chalk of the town is waiting for its leader to come. The organizers reassure the crowd that he would be here any moment. The crowd stands up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hope that he has come. The leader is Mr. Devi Lal, chief of the Haryana Sangharsh Samiti, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. His day starts at 8 a.m. and ends up after 11 p.m. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for his election. Now this is the news report, see, about the state assembly election in Haryana 1987 में. 1987 में जब elections held हुए थे तो हरियाणा में ये वाली न्यूज़ क्लिप आई थी कि एक लीडर है जिसका नाम था मिस्टर देवीलाल, वो एड्रेस करने आने वाला था मीटिंग. नाउ you also know that whenever there are elections are nearing, the leader comes and it addresses the people and बहुत सारी प्रोमिसेस करके जाते हैं आपको कि हम आपके स्टेट के लिए ये करेंगे वो करेंगे, आपके लिए बिजली पानी का कोई टेंशन नहीं होगा, फॉर फार्मर्स वी विल हेल्प, एवरीथिंग दे विल गो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, दे गो ऑन, दे विल टेल यू एंड दे डू द प्रोमिसेस. नाउ डू दे फुलफिल दीज प्रोमिसेस. नाउ हमको इंतजार क्या रहता है कि हम अपने लीडर को अपॉइंट करेंगे तो ऑफकोर्स ही विल हेल्प अस, है ना. अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपन क्यों अपॉइंट करते हैं? क्योंकि हमें उनसे कोई उम्मीद होती है. वी नो that this person will help us in some way or the other. Same thing had happened over here in Haryana. The elections were nearing and see, the state had been ruled by the Congress party led governed since 1982. Chaudhry Devilal then an opposition leader. उस टाइम पे चौधरी देवीलाल अपोजिशन लीडर थे और वो मूवमेंट कौन सा न्याय युद्ध का मूवमेंट चला रहे थे, यानी कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस. ही वॉज फाइटिंग फॉर जस्टिस व्हेन ही वॉज इन अपोजिशन पार्टी. अब वो इलेक्शन लड़ रहा था ताकि वो जीत जाए और जो पब्लिक को नहीं मिल रहा, उस पार्टी ने नहीं दिया, वो मैं दे दूंगा. फॉर दैट ही वॉज फाइटिंग एंड देन his party joined other opposition party to form a front against the Congress in the election. In the election campaign, Devilal said that if his party won the election, देखो उन्होंने क्या promises करी कि मेरी पार्टी अगर जीत जाएगी तो मैं आपको गवर्नमेंट मैं सबको लोन सैंक्शन कर दूंगा, फार्मर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन को, सारी promises उसने देवीलाल ने की और वो इलेक्शन जीत भी गए थे. इलेक्शन जीत गए और उन्होंने जैसे जीते तो इलेक्शंस में उन्होंने सारी promises, मतलब जो भी उन्होंने की थी ताज़ा जो प्रोमिसेस थी उन्होंने वो करी भी फार्मर्स के साथ, उन्होंने उनको हेल्प भी करा. एंड देन फॉर 4 years ही वॉज जैसी लोकसभा जब मैं उनमें हुआ ना, उन्होंने 70% आउट ऑफ 90 सीट्स 76 सीट्स उन्होंने स्टेट असेंबली में जीत ली थी और वो इलेक्ट हो गए थे एज अ लीडर ओवर देयर. एंड नाउ सी चीफ मिनिस्टर, ही वॉज सिटिंग ऑन द चीफ मिनिस्टर. द इलेक्शन रिजल्ट वो अनाउंस, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन. चीफ मिनिस्टर उधर जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर उसको रिजाइन कर दिया एंड न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जो MLAs थे जो देवीलाल ने चुने थे एज ए लीडर, वो वहाँ पर अपॉइंट हो गए. फिर द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर. ही हैड वन द इलेक्शन, ही बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा. नाउ 3 days after the election results were declared, he became the chief minister.
As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of farmers, agricultural laborers and small businessmen. जो उन्होंने प्रॉमिस की थी वो उन्होंने कर दिया. प्रॉमिस की थी ना लेबरर्स को एंड द फार्मर्स को, सारा जो लोन सेंक्शन किया. हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years. 4 years तक उन्होंने रूल किया बिकॉज दे वो हेल्पिंग, दे वो वॉट एवर दे प्रॉमिस दे वो डूइंग. सो 4 years दे वो देयर इन द ओवर देयर. द नेक्स्ट इलेक्शंस 1991 में जब हुए तो उन पार्टी को जो सपोर्ट मिला था वो हट गया. Now why the support was gone? Because starting they did whatever they had promised, but afterwards nothing was happening. जो लीडर प्रॉमिस करता है उन्होंने वो सारी प्रोमिसेस बाद में करनी छोड़ दी. तो द पब्लिक स्टार्टेड हेटिंग हिम. पब्लिक ने बोला कि अब तो ये कुछ कर ही नहीं रहे तो हमें इनको हटाना है. सो सेम थिंग हैड हैपेंड ओवर ईयर्स. ही जगदीप एंड नवरीत रीड द स्टोरी एंड कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला देखो. इलेक्शंस कैन लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज स्पीचेस. उन्होंने जो स्पीचेस जो भाषण देते ना लीडर्स, उनसे इम्प्रेस होकर उनको बुला लिया एज अ लीडर बनने के लिए. देन पीपल आर अनहैप्पी विथ एवरी रूलिंग पार्टी एंड वोट अगेंस्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. जो भी रूलिंग पार्टी होती है ना, पब्लिक उसको बाद में हेट करने लगती है कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा. और नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होता है, वो हार जाता है बिकॉज द पब्लिक इज नॉट सेटिस्फाइड. द पार्टी दैट विन्स द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट. दिस इलेक्शन लेड टू द लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा. कांग्रेस चीफ मिनिस्टर लेड नीड नॉट हैव रिजाइन आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट इलेक्शंस. नाउ पार्टी को बाद में क्या करना पड़ता है, या तो रिज़ाइन करो या तो उनको वहाँ से हटना पड़ता है. और वो चीज़ उन लोगों को कौन करता है, वी द पीपल. वी आर नॉट लाइकिंग द पीपल हु आर वर्किंग. हमने जो लीडर को अपॉइंट करा है अगर वो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा तो हमारे लिए वो किस काम का, तो हम उसको हटा देते हैं. नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग एवरी टाइम. इट हैपन्स एवरी इलेक्शंस. एक पार्टी जीतती है, उसके जो अपोजिशन पार्टी है वो शोर मचाती है कि दिस पीपल आर नॉट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द पीपल. ये काम नहीं कर रहे, ये वो काम नहीं कर रहे. एंड देन द माइंड ऑफ द पीपल इज चेंज्ड. एंड नेक्स्ट इलेक्शन में क्या हो जाता है, वापस जो रूलिंग पार्टी होती है उसको वो हरा देते हैं अपन और दूसरे को इलेक्ट कर देते हैं. सो दिस थिंग इज गोइंग ऑन एवरी टाइम. नाउ व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? अब इलेक्शंस अगर नहीं हो तब भी दिक्कत है. अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होगा तो जो लीडर है वो he will become the dictator and or he will become like a monarch or dictatorship. It will be no, that one person is only ruling, so there will be no competition and the people will not have any right to speak also, because we are the people who are electing him again and again. That is a different thing if he is elected because the people have liked him. बट अगर ऐसा नहीं होता कि पब्लिक को पसंद नहीं है पर उनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं है, देन व्हाट विल दे डू? दे विल अपॉइंट दैट सेम पर्सन ना, बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग एनीवन. So this is needed. Actually elections are needed because we have the right to elect the person whom we like and we want that representative to work. और वो representative तभी काम करेगा जब उनको ये डर बैठा रहेगा कि हम अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमें हटा दिया जाएगा, हमें यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, because public will shout, they will start shouting. और अपोजिशन पार्टी भी होनी चाहिए बिकॉज दे विल समवन शुड बी देयर टू क्वेश्चन देम ना कि आपने ये सब चीज़ें क्यों करी हैं. इफ देर इज नो वन टू क्वेश्चन देन व्हाट विल हैपन? ही इज द डिक्टेटर, दैट मीन्स दैट नो वन कैन क्वेश्चन हिम. और मोनार्क में जो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे अपन, वॉट एवर दे वॉन्टेड टू दे हैड टू डू, दे वर डूइंग ऑल्सो. बट नाउ वी हैव द राइट टू क्वेश्चन द पीपल दैट वाई यू आर डूइंग ऑल दीज मिस्टेक्स और वॉट एवर दे आर डूइंग. वी हैव अ राइट टू आस्क द क्वेश्चन टू देम. सो here now see, elections take place regularly in any democracy. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's represented. We also read the elections are held in many countries that are not democratic. Democratic countries जो नहीं होती है वहाँ भी elections तो होते हैं. Now but why do we need elections? A rule of people is possible without any election of if all the people can sit together every day and take all the decision. But as we had seen in chapter 1, this is not possible in any large community. एक बहुत सारी large community में ऐसा possible नहीं है कि अपन सारे एक साथ बैठ के डिस्कस करके और अपनी कंट्री को चला सकें. That is why elections are needed. अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम ना, सब अपनी तरीके से वर्क को संभालते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर laid down by the constitution. अगर हम वो चीज़ नहीं करते then what will happen? Again one person will be the leader and he will do whatever he likes to do. He will not follow any rules and regulations or nothing. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now
See, nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. Therefore, in most democratic country, people rule through their representatives. Is there a democratic way of selecting representatives without elections? Let us think of the place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen. Now, according to education or age, कहीं पर ऐसा होता है कि according to age they form the leader, or some places it is like according to education they form the leader. Now, here what happens, but let us say the people can resolve these difficulties clearly, such as place does not require elections. Now, here what will happen, but कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? अगर इस तरह का इलेक्शन हुआ कि एज के अकॉर्डिंग लीडर बना दिया, एजुकेशन के अकॉर्डिंग लीडर बना दिया, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहाँ हुई? वो तो अपने आप को तुमने लीडर बना दिया, पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा. सो दैट इज़ नॉट इन अ डेमोक्रेसी कंट्री. वी कांट डू दैट. How do we find out the people like these, they are representatives or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? How do we make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? This requires a mechanism by which people can choose their representatives. इसीलिए ये जो mechanism है where the people can choose their representatives और वही person rule करे, because we have chosen that person. We know that this leader will do something for us. That is called election. यहाँ पर अपन को ये इलेक्शन होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस. दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो चूज कर सकते हैं. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. ये वाली जो चीज़ है ना, वोटर्स ये सब चूज करके अपने सही रिप्रेजेंटेटिव को ऑन द सीट दे कैन मेक हिम सिट. अपन अपनी मर्जी से कोई भी लीडर नहीं बन रहा. वी आर अपॉइंटिंग देम, एंड दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर द इलेक्शन. नाउ व्हाट मेक्स ए इलेक्शन डेमोक्रेटिक? अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब होगा? इलेक्शन को डेमोक्रेटिक तब बनेगा जब अपन को फ्रीडम हो. वी हैव द राइट टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव. वी हैव द राइट टू वोट. अब बहुत सारी जगह पे पहले के टाइम पे यू हैव रेड इन द हिस्ट्री दैट द विमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट, द ओल्ड पीपल वर नॉट गिवन राइट टू वोट, एंड दे वर नॉट गिवन राइट टू इवन सिलेक्ट द लीडर. हूएवर सेड दैट आई एम द लीडर वाज द लीडर. सो दोज थिंग्स वर नॉट गिवन ना. तो ये जो चीज़ है डेमोक्रेटिक इलेक्शन, वो होता है जहाँ पर अपन को फ्रीडम है. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा उसको हटा सकते हैं. एंड वी हैव द राइट टू स्पीक. वी हैव द राइट टू टेल देम दैट यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स रॉन्ग. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी, डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. ये नहीं होना चाहिए फ़र्क कि रिच एंड पुअर का जो वोटिंग का वैल्यू है वो अलग है. ऐसा नहीं होता. एवरीवन इन द कंट्री हु इज द सिटीजन ऑफ द कंट्री विल वोट, एंड देयर वोट विल गिवन दैट मच इंपॉर्टेंस ओनली. यहाँ पर एज और आपकी एज देखो 18 के अब तो वोट देना ही है. एंड ये नहीं होता कि आपकी स्किन का कलर वाइट है, ब्लैक है, आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो. नो, दैट इज़ नॉट सीन. Only the thing is that you should be the citizen of India and you should be above age of 18. Then you have the right to vote and your vote will have the value. Now second, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choices to the vote. अब यहाँ पर choice भी होनी चाहिए voters के लिए. अब वोट देने जा रहा है, उसके पास choice ही नहीं है. ओनली वन लीडर इज है, तो उसी को आप वोट देंगे तो क्या है? तो देयर इज नो डिफरेंस ना. दे विल नॉट हैव चॉइस. उनको पता ही नहीं कि हम किसको चुने. एटलीस्ट बहुत सारी पार्टीज हैं. वी नो दैट विच पार्टी शुड कम, एंड वी शुड नो दैट विच पार्टी इज द पीपल हु विल कंट्रोल द गवर्नमेंट, हु विल डू द वर्क इन अ प्रॉपर वे. जो हमारा सही रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है उसको हमको चूज करने का राइट होता है. देन थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स. हमेशा देखो चॉइस होनी, इलेक्शंस होते हैं ना, वो रेगुलर हेल्ड होनी चाहिए. एंड जो एवरी फ्यू ईयर्स में वो इलेक्शंस हेल्ड होने चाहिए. फोर्थ, द कैंडिडेट्स प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. Fifth, elections should be conducted in a free and fair manner where people get choice as they
रियली विश, अब जो भी अपन ने चूज़ किया वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वहाँ पर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। आपके वहाँ आपने बोल तो दिया कि इलेक्शंस होंगे, बट वहाँ पर तो पार्शियलिटी हो रही है। द पीपल ऑफ दैट द अदर पार्टी और दैट पार्टी इज फोर्सिंग यू टू वोट देम, वो नहीं होना चाहिए। whom ever you wish you will vote, हमारी इच्छा से हम वोट दे रहे हैं, हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए, हमें पता है हमारा लीडर कौन बन सकता है। सो यू कैन फोर्स देम, आप उनको पैसे खिलाओ, आप उनको मार मार के वोट दिलवाओ, सो दैट इज़ रॉन्ग, दैट थिंग शुड नॉट हैपन, दैट इज़ नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इट शुड बी फ्री एंड फेयर।